मेरे को टाइम अस्सलाम वालेकुम मोज़िज़ ख़वातीन हज़रात मैं तुहाडा अपना अमजद राणा ते अज फिर असीं गल करांगे काले भगवान नाल ते काला भगवान जिहड़ा एक रहमदिल आदमी ते रोज़ियां च बड़ी सखावत करदे ने हुण पुछने ना कि रोज़ियां दे विच कुश्तियां हुंदियां ने कि नहीं जी अस्सलाम वालेकुम जी पहलवान जी की हाल काला पहलवान अल मरूफ भगवानपुरिया जी जी तुहाडा मतलब कि मशहूर है कि की कहंदे ने नशा छड्ड दिओ गुटखा छड्ड दिओ ते पहलवानी करो मेरा यही शुरू तो बगाम है 3-4 साल तो गुटखा सुपारी बील चुकने बच्चे छड़ दिओ अच्छी सेहत बनाओ पहलवानी करो रैसलिंग करो माँ बाप दादन भलवान जी जेह्ड़े लाहौर तो चलो कंट्रोल है दूसरे शहरों च पतंगबाजी हो रही है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ ਦਸਾਂਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੀ ਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੰਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੌੜ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੌੜ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲਿਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੌਣ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆਮ ਤਾਂ ਖੇਲ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੀ ਆਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਬਸ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਰਦ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ तो पहलवान जी जापान कुश्ती घुली तुसी नहीं जापान नहीं घुली जापानी इत्थे घुलदे रहने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਪਾਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਘੁਲੇ ਹੋ हाँ जी गद्दे दे जोर होते रहने ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ देखो जी किहड़ा साडा मुसलमान मुल्क है ना सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले ने वो खुशबूआं आंदियां ने ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਬੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਕ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਇਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਾਸਬ ਦੱਸਦੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਹਾਨੀ ਪਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਪਾਓ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਤੇਲ ਪਾਓ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਫੁੱਲ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਹਾਨੀ ਬਾਅਦ ਨਾ ਖਾਵੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਸਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਕਿ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਸਤਾ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਅਗਰ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬੇਰ ਖਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਰ ਖਾਏ ਸੇਬ ਖਾਏ ਕੇਲਾ ਖਾਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਏ ਫਲ ਅੱਛਾ ਫਲ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਆਈ ਕਹਿਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਓ ਠੰਡੇ ਟੀਂਡੇ ਅਰਬੀ ਘੀਆ ਕੱਦੂ ਕਰੇਲੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਪੂਰਾ ਲੇਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲੇਲੇ ਲੂਲੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਵਾਹ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਖਾ ਲੇਗਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਦੰਬੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੱਛਲੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੱਛਲੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਛੀ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਜਾ तो ज़ाहिर साहब कभी आपकी खुसरे से लड़ाई
थले आ अच्छे लोग होते हैं, प्यार करने वाले लोग मेरे फ्रेंड प्लीज हाजसरा अच्छे लोग होते हैं। हाँ हाजसरा बहुत अच्छे लोग, इनके बुराई वहाँ की नहीं जाहिद भाई एक सवाल, आपको हीरो क्यों कहा जाता है? जाहिद हीरो, इसका जवाब दो। लोग मोहब्बत से कहते हैं, प्यार से नहीं मसला नहीं, हीरो बीच में कहा कोई, ऐसे ही मतलब ये कैसे आपको लक़ब मिला, किसने दिया खिताब? उसने हीरो किया है ना फिल्मों में। वो तो किया तो मुझे पता ना, फिल्म टेलीविज़न स्टेज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े फ़नकार जनाब अमजद राना साहब, आइए उनसे बात करते हैं। राना साहब ये बताएं कि आप नाश्ता किस चीज़ का करते हैं? मैं जी सबसे पहले उठ के मैं दुआ करता हूँ अपने लिए, और फिर मैं नाश्ता मैंने पूछा है, ये नाश्ता ही है भाई, दुआ से बड़ा नाश्ता कोई नहीं। उठ के नाश्ता किस चीज़ का करते हैं? नाश्ता मैं सबसे पहले लेता हूँ चाय। चाय पीने के बाद आधा घंटा के बाद मैं जाता हूँ बाथरूम। बाथरूम का नहीं आपने पूछा, लेकिन मैं जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, डजन डाडा फ्रेश, ऐसे पानी मारा तो फ्रेश। उसके बाद मैं एक सेब जो मैंने त्रेल में रात को, त्रेल समझते हैं ना जिसको कहते हैं औस, जी जी मैं समझता हूँ। उस औस में मैंने एक जो सेब रखा होता है उसको फिर मैं थोड़ा सा पानी मार के तो फिर उसके मैं करता हूँ 4 पीसेस, और फिर मैं थोड़ा थोड़ा लेता हूँ इतनी राना देर साहब में। आप पीछे बहुत मसरूफ़ रहे हैं, रिहर्सल्स भी होती रही हैं थिएटर की, सुबह पार्क होते रहे हैं आप, कितने बजे जाकर सोते रहे हैं और कितने बजे उठते रहे हैं, फिर वापस आप लाहौर भी आते रहे हैं, काफ़ी आपका शेड्यूल सख्त रहा है, वो कैसे मैनेज करते रहे हैं, खाना कैसे खाते रहे हैं, जूसेस पीते थे आप या नहीं पीते थे? बिलाल साहब अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला बंदा तो कुछ भी नहीं है, थक तो बहुत। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं तुहाडा अपना अमजद राणा ते एक बारी फिर मैं हाज़र हाँ ट्रैवल टू शोबिज़ चैनल दे उत्ते ते बड़ियां अच्छियां इत्थे गल्लां होंदियां ते फनकारां दा तारफ हुंदा है। ते अज्ज जेह्ड़ी मेरे कोल शख्सियत है वो ज़ाहिद अली ने, इन्हां नूं पाकिस्तान दा इकबाल हसन, तंजीम हसन भी कहा जाता है, शक्ल बड़ी मिलती, निशाबत और काम बड़ा अच्छा करते हैं, करैक्टर एक्टर रोल करते हैं, और जेड़ा भी रोल करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं। ते आओ इन्हां नाल गल करने। अस्सलाम वालेकुम सलाम राना साहिब, कैसी दुनिया? साहब क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बताओ सुनाए नहीं। ज़ाहिद साहब नुकदी खाइए कभी आप? हाँ, लोग भी बड़े शौक से बात करते हैं। नॉलेज में क्योंकि बचपन से हम लोगों ने खानी शुरू की है, तो बचपन में खाई चीज़ें कभी भी इंसान उसका जायका खत्म। एक पंजाब की आइटम है गचक। गचक कभी आपने घर में खुद बनाई थी? नहीं बना तो यार मेरी गल समझ गए, मैं छोटे थे तो घर में ही बनाते सर्दियाँ नहीं तू फिर वेख अच्छा पिटन दे पैसे ला गए हैं मैं, मेहरबानी वो इंज करके सिस्टम हाँ जी, तो मैंने बहुत अच्छा कितने में ले गए हैं? थैंक यू पता नशा करते हैं को आप? आराम 11 बजे आ आया हुआ है सारे जाए मेरा भरा प्लीज करना भी नहीं चाहिए। चलो शुक्र। ये आप क्या कहेंगे न्यू जनरेशन? न्यू जनरेशन क्या बोलना, सब आप भी न्यू जनरेशन है, मैं भी न्यू जनरेशन। ये पैगाम तो देना है ना न्यू जनरेशन। यही है बस अपनी जिंदगी का मैं मजा भी लेना हूँ। आप अल्लाह से इनसे कैसे बचे। देखिए मैं आपके सामने तो जिंदगी में इतना काम किया आपने स्टेज की दुनिया में, मैं वो स्टेज, तो फिल्म, ये टेलीविज़न। जो हमारी प्रॉप्स होती है ये चेंज होती रहती है कभी पहले। किस एक्टर के पहनने के बाद आपने कपड़े पहने हो तो आपको स्मेल नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं था। वो पहला मैं तो समझाया कि कोशिश करते मैं हैं तो भी आपको समझाया यही कि कपड़े कमीज में फटे ते रख ना ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਬਣਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ठीक है जी, ये आ गई नहीं मर गया ਆਏ ਓਏ ਮੈਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾਨਾ ਸੋਹਣੇ आप जाए ना यहाँ से, आप जाए ना यहाँ से, ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ मुझे आपकी पंजाब से शर्म आ रही है। जैसे शादी हो रही है ना, उसको शादी से पहले चाची कहती है जिससे शादी हो रही है।
अम्मी जी मेरे प्यो ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੜਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ 8 मार्च जी कौन सा ड्रामा कर रहे हैं ये जुमा 8 मार्च तो घुंगरू मंगदे तेरा प्यार तमासील थिएटर च कैसा प्ले है ये इतना अच्छा प्ले वे कि कामयाब इन्ना होया पब्लिक की फरमाइश से इन्हू वधाया गया प्ले और प्ले जड़ा सारे शो पैक रहे ने फैमिली आ रही है इत्थे और तुसीं दसो तुहानू प्ले कर रहे हो कैसा लगा प्ले बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आया और एक्टर ना काम करके भी बहुत मज़ा आया बहुत अच्छी एक्टिंग की थी जी ज़रूर देखेंगे। फैमिली ड्रामा है घुंगरू मंगदे तेरा प्यार। एक जो है ना सब्जेक्ट इसके अंदर फैमिली आ रही बहुत ज़्यादा। आपसे गुजारिश है कि रोज़ों से पहले ज़रूर देख लीजिए, ये आखिरी 2-3 दिन रह गए, ज़रूर देखने से तशरीफ लाइएगा। घुंगरू मंगदे तेरा प्यार। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी इनकी बात को सेकंड करता हूँ और हमारा ये फैमिली प्ले देखने 8 मार्च से मंगदे थैंक यू बहुत मंगदे तेरा प्यार।